Hi students, I welcome you all in this video. I have been making videos from solid state and I have finished the whole chapter. Today we will solve the previous year's NEET questions, including the NEET question from 2021. Two questions I have written in the board. Please see how I am solving the questions, and if you need somewhere you can take the screenshot if you want to watch it later. So let's start the video. This is the question from 2021. Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell. एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर्स होते हैं 12 कॉर्नर्स में से ईच कॉर्नर विल बी शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स. तो एक कॉर्नर का कितना शेयर एक यूनिट सेल को तब मिलेगा? इट विल बी 1/6 एंड देयर आर 12 कॉर्नर्स. So contribution of the corner atoms to a unit cell will be how much? 12 into 1/6. There are 3 atoms which are present in the body center of the hexagonal unit cell which will not be shared by any other unit cell. आपको पता है कि बॉडी सेंटर में जो होते हैं एटम वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो सकता है. इट बिलोंग्स टू दैट यूनिट सेल. सो इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 3. And there are 2 face center atoms, and you know the atom which is present in a face center that will be shared by 2 other unit cells. तो एक फेस सेंटर वाला जो एटम है उसका कितना शेयर मिलेगा? एक यूनिट सेल को हाफ शेयर मिलेगा. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेस सेंटर एटम्स विल बी हाउ मच? 2 into 1/2. अगर ये हम सारे जोड़ते हैं तो हमें एक हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें मिलेगा 6. तो 6 एटम्स अगर एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितना एटम्स होता है एक यूनिट सेल में उतना ही नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जस्ट डबल द नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो लेट अस सॉल्व इट. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो कि हेक्सागोनल यूनिट सेल है will be 12 into 1/6 plus 2 into 1/2 plus 3. So it will be 2 plus 1 plus 3. So 6. 6 atoms are there in one unit cell. So number of octahedral voids will be same as the number of atoms present in one unit cell, and number of tetrahedral voids will be equal to double the number of the octahedral voids. That means it will be 6 into 2, so it will be 12. So आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो आप देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर 12 है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर 6 है. यहाँ पे पहले ही बताया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 12 6. So we have solved question number 1. Next question is from NEET 2020. Let's read the question. An element has a BCC structure. BCC मतलब body centered cubic structure with a cell age of 288 picometer. सेल एज जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज 288 पिकोमीटर. द एटॉमिक रेडियस इज, ये ऑप्शंस है आपके. तो आपको पता है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो एटम का रेडियस और सेल एज वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. द रिलेशन इज दिस: रेडियस r is equal to √3/4 a is the एज लेंथ. सो A की वैल्यू हमें बता दिया गया 288 पिकोमीटर. सो R विल बी इक्वल टू √3/4 into 288 picometer. Very easy. So which option is correct? Option A is the correct option. So we have solved question number 2 also. Let's go to the next question. Now we will solve question number 3, students.
This is the question from NEET exam 2019. The question is, a compound is formed by cation C and anion A. The anions form HCP lattice and the cations occupy 75% of the octahedral voids. The formula of the compound is, इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है. तो let us solve it. As the anions are forming the HCP lattice, तो we will suppose first of all the number of anions as n numbers of anions हम suppose कर लेंगे. तो जितना anions होंगे, जो लैटिस है, HCP लैटिस है, उसमें जितना anions होंगे उतना ही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उसके डबल नंबर में होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर. सो वी सपोज लेट द नंबर ऑफ anions making HCP lattice is equal to n. So number of octahedral voids will also be equal to n. जो भी एटम या तो आयन क्लोस्पेक स्ट्रक्चर बना रहा है उसका जितना नंबर है उतना ही नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल होते हैं. सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स will be equal to 2n. अब देखो कैटायन C ऑक्युपाई कर रहा है 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर है n, तो 75% मतलब 3/4. 75 by 100 करने से कितना होता है? 3/4 होता है. सो 3/4 of the octahedral voids are occupied by the cation C. So we write number of cations C is equal to 3/4 into n. That means you can write 3n/4. And anions क्या कर रहा है? anions तो HCP lattice बना रहा है जिनका नंबर हमने पहले ही सपोज कर लिया n. anions के नंबर हमने n सपोज कर लिया. तो अभी फॉर्मूला कैसे निकलेगा? कैटायन एनायन का रेशियो निकलना पड़ेगा, उसी से फॉर्मूला निकल जाएगा. सो रेशियो ऑफ C is to A will be equal to what? 3n/4 is to n. That means you can write 3n is to 4n. So n कैंसिल हो जाता है. So C is to A कितना आ जाता है? 3 is to 4. So फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड will be equal to C3A4. That means option D. So ये हमारा सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. Now we will solve question number 4 and question number 4 is again from NEET 2019. So this problem is formula of nickel oxide with metal deficiency defect in its crystal is Ni 0.98O. The crystal contains Na plus 2 and Na plus 3 ions. Na is the transition element and transition elements you all have studied. The transition elements they exhibit variable valencies. So ये जो metal deficiency defect ये देखा जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में, जैसे कि FeO, FeS, NiO, ये जो कंपाउंड्स है दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स. नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लिखते हैं एक्चुअली कैटन एनायन का रेशियो उससे डिफरेंट होता है, तो उन्हीं को कहा जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड. तो FeO, FeS, NiO ये सारे ही नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें मेटल डेफिशिएंसी होते हैं. नॉन मेटल के कंपैरिजन में मेटल के नंबर कम होते हैं. तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिस्टल में Na+2 एज वेल एज Na+3 आयन दोनों ही टाइप का आयन प्रेजेंट है. आप पूछ रहे हैं आपसे कि द फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्टिंग एज Na+2 आयन्स इन द क्रिस्टल इज, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि निकेल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 0.98:1. निकेल एटम और ऑक्सीजन एटम का रेशियो है 0.98:1.
तो अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो निकेल और ऑक्सीजन एटम का रेशियो कितना हो जाएगा, 98:100 हो जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा, तो वही हम करते हैं। सो Na is to ऑक्सीजन इज इक्वल टू 98:100। अब हम सपोज कर लेते हैं कि निकेल +2 आयन के नंबर x सपोज कर लेते हैं, तो निकेल +3 आयन्स के नंबर तब कितना होगा, 98 से x हमें माइनस कर देना पड़ेगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ निकेल एटम्स वो जो है Na+2 आयन फॉर्म में है या तो Na+3 आयन फॉर्म में है। निकेल एटम का टोटल नंबर है 98। तो 98 निकेल एटम में से अगर हम सपोज करते हैं कि निकेल +2 आयन्स के नंबर जो है x है, तो निकेल +3 आयन्स का नंबर कितना हो जाएगा, 98 - x। सो लेट अस सपोज number of Na+2 ions is equal to x, then number of Na+3 ions कितना हो जाएगा, 98 - x। अब देखो ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मीन्स निकेल +2 आयन, निकेल +3 आयन के जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, उनका सम टोटल क्या होना चाहिए, उनका सम टोटल 0 होना चाहिए, बिकॉज कंपाउंड एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंपाउंड एज ए होल चार्ज नहीं है। तो हम जो है कैलकुलेट करते हैं टोटल चार्ज ऑफ निकेल +2 एंड निकेल +3 आयन्स एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्साइड आयन्स। सो टोटल चार्ज ऑफ Na+2 and Na+3 ions will be how much? Na+2 ions के नंबर है x, so it will be 2 into x। 2 क्या है, Na+2 आयन, एक Na+2 आयन के चार्ज है, तो उसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 into 98 - x हो जाएगा, बिकॉज Na+3 आयन्स के नंबर है 98 - x, एक Na+3 आयन का चार्ज है +3, तो टोटल 98 - x Na+3 आयन का चार्ज कितना हो जाएगा, 3 into 98 - x। और जो ऑक्सीजन एटम के चार्ज है will be equal to -2 into 100, बिकॉज ऑक्सीजन एटम के नंबर 100 है और एक ऑक्सीजन का चार्ज ये ऑक्साइड में कितना है, -2 करके है, दैट मीन्स इट विल बी -200। अब इन सब का पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज का सम टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी राइट 2x + 3 into 98 - x plus -200 will be equal to 0, और 2x plus 3 into 98 minus 3x minus 200 will be equal to 0, और you can write यहाँ पे 2x minus 3x ये हो गया -x plus 294 is equal to 200, 200 को राइट हैंड साइड में ले गया, और you can write -x is equal to 200 minus 294, that means it will be -94, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, सो x की वैल्यू हमें मिल जाता है 94। तो x क्या हमने सपोज किया था, Na+2 आयन के नंबर हमने सपोज किया था, तो Na+2 आयन के नंबर हमें मिल गया है 94। हमें पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्टिंग एज Na+2 आयन्स इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में Na+2 आयन्स के फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ निकेल एटम्स है 98, उनमें से 94 अगर निकेल +2 आयन फॉर्म में है, तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ निकेल +2 आयन्स, द फ्रैक्शन विल बी दिस, यहां पे कर देते हैं फ्रैक्शन ऑफ Na+2 आयन्स इन द crystal will be how much, 94/98। यही अगर हमें परसेंटेज में पूछते तो हमें यहाँ पे बस 100 मल्टीप्लाई कर देना होता, लेकिन इन्होंने परसेंटेज में नहीं पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, सो इट विल बी 94/98।
तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा 0.96, ये आएगा। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस प्रॉब्लम ऑल्सो वी हैव सॉल्व्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, and this question is from NEET exam 2018. See, the question is iron exhibits BCC structure at room temperature. Room temperature में BCC structure होता है आयरन का। Above 900 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दिया जाता है, it transforms to FCC structure. रूम टेम्परेचर में BCC स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है और 900 सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तब उसका स्ट्रक्चर हो जाता है FCC। अब बोल रहे थे द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। बोल रहे कि मोलर मास और एटॉमिक रेडियस जो है आयरन का वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंटली रहता है। तो अभी आपको रूम टेम्परेचर में आयरन की डेंसिटी और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो टेम्परेचर है उसमें आयरन की डेंसिटी का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको हमें चुनना है। तो लेट अस सॉल्व दिस। रूम टेम्परेचर में आयरन का स्ट्रक्चर क्या है? BCC स्ट्रक्चर है। आयरन हैज BCC स्ट्रक्चर। अब BCC स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। सो वी राइट डेंसिटी, 2 डेंसिटी निकलना है तो रूम टेम्परेचर वाला जो डेंसिटी है उसको हम ρ1 से रिप्रेजेंट करते हैं और अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो डेंसिटी होगा उसको हम ρ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ρ1 इज इक्वल टू व्हाट? Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू N0 Avogadro number. N0 is Avogadro number, this is molar mass M and A cube is the एज लेंथ जिसका क्यूब करने से वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए रेडियस एटम का तो कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, लेकिन सेल एज जो है वो चेंज करेगा स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ साथ। तो हम BCC में हमें रेडियस और सेल एज के बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता है। व्हाट इज इट? R इज इक्वल टू √3/4A. So A will be equal to what? 4R by √3. और Z की वैल्यू क्या है? Z की वैल्यू 2 है। So let us put the value 2 into M divided by A क्यूब कितना हो जाएगा? 4R by √3 का होल क्यूब इंटू N0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 2M डिवाइडेड बाई 4R का होल क्यूब करने से 64R क्यूब और नीचे हो जाएगा 3√3, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 3√3 कर देते हैं और इंटू N0। ये हो गया हमारा रूम टेम्परेचर में जब आयरन BCC स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है तब डेंसिटी का वैल्यू। अब हम देखेंगे कि अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड iron has FCC structure. So ρ2 will be equal to what? Again Z into M divided by A cube into N0. अब in FCC structure में what is the relation between the radius of the atom and the edge length? It is R is equal to A by 2√2. So A will be equal to 2√2 R. तो FCC स्ट्रक्चर में Z जो कि नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल दैट इज 4, तो हम पुट करते हैं वैल्यूज। सो इट विल बी 4M डिवाइडेड बाई A क्यूब क्या हो जाएगा? 2√2 R का होल क्यूब हो जाएगा। इसका होल क्यूब करने से कितना होता है? A क्यूब हो जाएगा 16√2 R क्यूब। तो इट विल बी 16√2 R क्यूब इंटू N0। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ρ1 बाई ρ2 कर देंगे। ρ1 बाई ρ2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 2M इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 64 R क्यूब
इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई रो 2 की वैल्यू है 4m डिवाइडेड बाई 16√2 r cube into n naught. So you can write 2m into 3√3 by 64 r cube n naught multiplied by 16√2 r cube into n naught डिवाइडेड बाई 4m. अब हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल करते हैं. m कैंसिल हो गया, r क्यूब n नॉट. अब देखो 2 और 4 कैंसिल होकर के 2 से ये 16√2 को अगर आप करोगे तो 8√2 हो जाएगा. अब 8 से अगर आप 64 को कैंसिल करोगे तो 8 हो जाएगा. तो अभी आपका क्या रह गया 3√3 इंटू ये वाला √2 डिवाइडेड बाई 8, जिसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3√3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई, आप अगर इसको 4 इंटू 2 कर दोगे, 8 को 4 इंटू 2 करने से 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को लिखा जा सकते हैं √2 इंटू √2. तो ऊपर नीचे एक √2 कैंसिल हो जाएगा. आपका रेशियो क्या आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2. 3√3 by 4√2. That means which option is correct? Option C is correct. So we have solved this question. इसके बाद हम next question solve करते हैं. In this question students they are asking which is the incorrect statement. जो incorrect statement है उसको आपने ढूंढना है. तो हम एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं. इस क्वेश्चन में पहले मैं बता दूं कि ये जो नंबर डी ऑप्शन में जो लिखा गया है FeO 0.98 हैज नॉन स्टोक्योमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है. FeO 0.98 ये मेटल डेफिशिएंसी नहीं दिखा रहा है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखा रहा है. बिकॉज यहाँ पे देखो आयरन इज टू ऑक्सीजन रेशियो है 1:0.98. सो मेटल यहाँ पे एक्सेस है, तो दिस स्टेटमेंट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोल रहा है तो ये गलत स्टेटमेंट है. ये सी भी गलत है. तो दोनों स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो हमें यहाँ पे पूछना चाहिए था which आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ पे पूछा है which इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो दैट इज वाई नंबर डी को हम छोड़ देते हैं. नंबर डी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ नंबर डी. नंबर सी भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो पता नहीं क्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो नंबर डी को रॉन्ग स्टेटमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे हमें इज के जगह तब आर लिखना चाहिए था. तो सी को देखो, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन व्हिच साइजेस ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल. ये टोटली रॉन्ग है, बिकॉज फ्रेंकेल डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर आयन जो है इट इज मिसिंग from its lattice site and it goes into a interstitial site. अपना साइट छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है. तो जनरली कैटायन जो कि स्मॉल होता है साइज में, वो ही जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में. तो यहाँ पे कैटायन और एनायन के साइज के अंदर लार्ज डिफरेंस होना चाहिए. Then only the small size cations they can go and occupy the interstitial sites. लेकिन इक्वल साइज अगर होगा तो कैसे इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन जाएगा, नहीं हो सकता. सो देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. फ्रेंकेल डिफेक्ट तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो नंबर सी इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. और नंबर ए और बी अगर देखा जाए दे आर करेक्ट. नंबर ए में बोल रहा है कि डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल्स विथ शॉटकी डिफेक्ट. दैट इज करेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट में पेयर्स में कैटायंस एंड एनायंस दे विल बी मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी विल डिक्रीज. एंड नंबर 2 में बोल रहा है कि NaCl सॉलिड, यहाँ पे एस एज सबस्क्रिप्ट जो लिखा गया है इट इंडिकेट्स दैट सॉलिड NaCl की बात हो रही है. तो NaCl सॉलिड इज इंसुलेटर. It is insulator. It does not conduct any electricity because solid state में NaCl में Na plus ion और Cl minus जो है they will not be free to move, so it will not conduct any electricity. इसके बाद बोल रहे हैं सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, ये भी सही है. सिल्वर इज ए कंडक्टर, दैट इज ऑल्सो राइट बिकॉज सिल्वर बीइंग ए मेटल विल बी ए कंडक्टर. एंड क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये भी सही है.
सो नंबर ए बी ये दोनों तो करेक्ट है, सी और डी दोनों गलत है। तो हम यहाँ पे सी डी दोनों ऑप्शन दे सकते थे, प्रोवाइडेड हमें यहाँ पे व्हिच आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता, लेकिन व्हिच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हम सी को कर सकते हैं या तो हम डी को कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम नीट एग्जाम 2017। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2016। लेट्स रीड द क्वेश्चन। The ionic radii of A plus and B minus ions are this and this. The coordination number of each ion in AB is, ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो ये आपको करना होगा रेडियस रेशियो रूल से। रेडियस रेशियो रूल क्या है, उसमें रेडियस ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनायन करके आपको रेशियो निकालना है। और ये जो टेबल है, इस टेबल में से आपने देखना है इट इज फॉलिंग इनटू व्हिच कैटेगरी। ये आपको रेंज दे दिया गया है कि रेडियस रेशियो अगर इस रेंज में आते हैं 0.155 से 0.225, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 एंड द स्ट्रक्चर विल बी प्लानर ट्रायंगुलर। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.414 इस रेंज में आते हैं, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड द स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। इफ इट कम्स इन द रेंज 0.4142 to 0.732, then the coordination number will be 6 and the structure will be octahedral। and last option है 0.732 से 1 इस रेंज में अगर रेडियस रेशियो के वैल्यू आता है, इन दैट केस द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8 एंड द स्ट्रक्चर विल बी BCC। तो हमें जो रेडियस की वैल्यू, उस कैटायन एनायन का रेडियस की जो वैल्यू हमें दे दिया गया है, उससे हम पहले रेडियस रेशियो निकालते हैं और उसी से ही हमें पता लगेगा कि ये जो AB टाइप का कंपाउंड है, इसमें एक एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं रेडियस रेशियो R प्लस बाई R माइनस is equal to what? 0.98 into 10 to the power minus 10 divided by 1.81 into 10 to the power minus 10। ये कैंसिल हो जाता है और डेसिमल पॉइंट अब हटा दो ऊपर नीचे। ये डिवीजन करने से आएगा 0.541, ये आएगा ये डिवीजन करने से। तो देखो 0.541 जो है कौन सा रेंज में आ रहा है, ये वाला रेंज में आ रहा है 0.414 से 0.732 इस रेंज में आ रहा है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक आयोन का क्या होगा, A प्लस B माइनस, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 एंड द स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।